بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے دیٹس اباؤٹ سکسیزفل مینیجریل ایکٹیویٹیز کہ کیسے اس کو ہم اپنے جو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں کیسے ڈالتے ہیں اور کیسے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس لوتنس ہیں، ایسوسیٹس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ there are 4 managerial activities which should be thoroughly studied and followed. First one is traditional management, second one is communication, the third one is human resource management, and the fourth one is networking. ٹریڈیشنل مینجمنٹ سے کیا مراد کہ وہ پرانے طور طریقے جو مینول طور طریقے ہیں اس کو فالو کرنا. کمیونیکیشن ایز یو نو بیٹر کہ ہمارے پاس جو ہے یہ انفارمیشن کے لیے ہم وہ کرتے ہیں کہ یار کیسے آپ اپنا انفارمیشن جو ہے دوسروں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن از kind of crucial element for every organization so that they can keep it and move on. ٹھیک ہے، اسی طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیسے آپ ہائرنگ کرتے ہیں لوگوں کی اور کیسے جو ہے آپ ریکروٹمنٹ سلیکشن کرتے ہیں اور کیسے جو ہے آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اس کو ٹرین کیسے کرتے ہیں. تو ایچ آر از آلسو ون آف دا کی ایلیمنٹ آف یور آرگنائزیشن. کیسے آپ جو ہے ایچ آر کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نیٹورکنگ کا مطلب ہے کہ کیسے آپ لوگ جو ہے اپنے ساتھ میں ملا لیتے ہیں، ایک نیٹورک بنا لیتے ہیں. اسی طرح کسٹمر، ریٹیلر اور کوئی بھی جتنے بھی آپ کے بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو اپنے ساتھ ملا. ٹھیک ہے، یہ بھی نیٹورکنگ کرنا. تھوڑا سا آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سکسیزفل مینیجریل ایکٹیویٹیز جو ہے کیسے فالو ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ ایکٹیویٹیز جو ہم نے یہاں پہ وہ پہلے ابھی ڈسکس کی کہ ٹریڈیشنل مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، کمیونیکیشن اور نیٹورکنگ. ابھی اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا کہ کیسے جو ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کیسے جو ہے ایوریج مینیجر، سکسیزفل مینیجر اور افیکٹو مینیجر جو ہے کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں. اگر آپ دیکھ لیں تو ایوریج مینیجر جو ہے وہ 19% نیٹورکنگ استعمال کرتا ہے، 32% ٹریڈیشنل مینجمنٹ استعمال کرتا ہے، 29% جو ہے اس کو کمیونیکیشن ہوتا ہے، whereas 20% جو ہے اس کے بعد میں HR مطلب ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو یہ ایک ایوریج مینیجر کی خاصیت ہوتی ہے کہ کیسے وہ جو ہے اپنا کام نکالتا ہے اور کیسے وہ جو ہے اپنا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 19% کیا ہوتا ہے؟ نیٹورکنگ. 32% کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈیشنل مینجمنٹ. اور 29% کیا ہے؟ کمیونیکیشن. اور ریسٹ 20% جو ہے ایچ آر. اگر آپ سکسیزفل مینجمنٹ کو دیکھیں یا سکسیزفل مینیجرس کو دیکھیں اس میں 48% آپ کے نیٹورکنگ. اگر آپ لوگوں نے کچھ مثالیں دیکھی ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی آج کل پروڈکٹس آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے ملٹی نیشنل پروڈکٹس لا رہے ہیں، وہ زیادہ تر نیٹورکنگ کو لوگ کہ کسی طرح ایک نیٹورک بنا لیا جائے اور وہ جو ہے لوگوں تک مل جائے. اگر آپ لوگوں نے یہ چائنیز ایک کمپنی ہے ٹائنس انٹرنیشنل یا ٹائنس انٹرنیشنل، اس کے پروڈکٹ بہت مہنگے ہیں لیکن وہ ایک نیٹورک بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح آپ جو ہے پروڈکٹ جو ہے لوگوں تک اس کو پہنچائیں تو آپ کا اس میں ریوارڈ بھی ہوگا، بونس بھی ہوگا، اس میں پرسنٹیج بھی. یہ کیا ہے 48% جو ہے نیٹورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 13% کیا ہے؟ ٹریڈیشنل مینجمنٹ یہ اپنے ڈاکومنٹیشن اور ساری چیزیں. 13%. 28% جو ہے آپ کا کمیونیکیشن انوالومنٹ وچ از ایگزیکٹلی دا سیم، آلموسٹ دا سیم ایز ایوریج مینیجر. اور اسی طرح 11% ایچ آر، کیونکہ اس میں آپ کا ایچ آر جو اپنے آفس میں بندے رکھتے ہیں تو وہ کم استعمال ہوتا ہے. باقی جو ہے آپ کا نیٹورکنگ میں زیادہ نیٹورکنگ میں بھی لوگ آتے ہیں لیکن وہ آپ کے ڈائریکٹ امپلائیز نہیں کیا ہوتے ہیں، ڈائریکٹ امپلائیز نہیں ہوتے آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں. اسی طرح افیکٹو مینیجرس کا استعمال کیا ہے، وہ 11% کیا کرتا ہے؟ نیٹورکنگ کرتا ہے. 19% ٹریڈیشنل مینجمنٹ استعمال کرتا ہے. 44% اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. whereas the rest 26% HR. یہ موسٹلی جو بگ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو
एक्टिव मैनेजर्स का इस्तेमाल दिया तो वो एक एक्टिव मैनेजर इस्तेमाल ये वाला करते हैं, ठीक है। और सक्सेसफुल मैनेजर क्या करता है, उसका ज़्यादातर काम जो है नेटवर्क में होता है, वो इस तरह जो है वो अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ओबी, कि ओबी अब हम कैसे देखते हैं। ओबी इज a field of study that investigates the fact that individual groups and structures have on behavior with organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness. अच्छा, वो भी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं इम्पैक्ट, इंडिविजुअल का इम्पैक्ट क्या है ग्रुप के साथ, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, और उसका बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ताकि हम ये मकसद हमें मालूम हो जाए कि कैसे उसका नॉलेज हम improve कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो भी में क्या है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है इंडिविजुअल के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, और अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखना है, ताकि वो हम जो है अपनी नॉलेज कैसे इस्तेमाल कर सके और उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेशन। अगर आप उसको उसमें और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, आप उसमें आप सोसाइटी की भी देख सकते हैं, आप उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को भी देखते हैं, तो लेकिन ऑब्वियस का मतलब ये है कि किसी तरह आप जो है जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज आपके पास है वो किस तरह आप अप्लाई करते हो और कैसे जो है आप जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए आप काम करते हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टीम वर्क, ग्रुप्स, इंडिविजुअल और सबको लगा लेते हैं, ताकि आप आपका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आती है कुछ हमारी स्टडीज के कैसे आप करते हैं, आप कैसे जो है सिस्टमैटिक स्टडी को उठाते हैं और कैसे आप जो है उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। अब जब हम आते हैं तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर जो जनरली आप प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब एक बंदा जो है वो कैसे आपको पता है कि हाँ वो सिचुएशन में जो है परसीव करता है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब आप सोचते हैं कि यार इस बंदे के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी आपको वो भी बताती है कि सिस्टमैटिक स्टडी बिहेवियर जब आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे जो है बंदे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टमैटिक स्टडी होती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक काम दिया होता है, आपको एक काम दिया जाता है कि आप इसको किसी तरह ये जो है करना है, और उसी में जो है आपका एम्प्लॉय जो है वो और क्या करते हैं, तो मैं डिसीजन ऑन एविडेंस मतलब जो आपके पास सबूत है उस पर जो है डिसीजन बना लेंगे। इंट्यूशन का क्या मतलब है, इंट्यूशन मतलब वो भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है आपकी जो है मतलब एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में। अब इसमें इंट्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास गट फीलिंग हो, व्हाई आई डू व्हाट आई डू एंड व्हाट मेक्स अदर थिंक, इसमें आप जो है अपनी गट फीलिंग आ करें, ठीक है। गट फीलिंग हौसला अफजाई, आप कहते हैं क्या व्हाई आई डू दिस, व्हाई आई डू व्हाट आई डू एंड व्हाट मेक्स अदर थिंक, ठीक है। तो ये आप if we all if we make all decisions with intuition or gut instinct, we are likely working with incomplete information, ठीक है। सारे डिसीजन आप इंट्यूशन पे नहीं बना सकते हैं कि आप अपने उससे, क्योंकि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोगों की राय भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, किसी तरह आप लोगों से राय ले लो और फिर जो है आप एक डिसीजन की तरफ जाओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो डिसीजन बगैर जो है वो आप जाते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो फिर फेलियर की तरफ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या करना है, किसी तरह लोगों को अपने साथ लेके चलना है,
ऐसे ना हो कि आप जो है आप अपना डिसीजन बना लेते हो, वगैरह जो आपके अदर्स होते हैं वो आपके डिसीजन में नहीं आते। ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि बिहेवियर साइंस में मेजर डिसिप्लिन क्या है जो हॉबी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अब आपको, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि हॉबी जो है एक अप्लाइड नॉलेज है, मतलब एक अप्लाइड बिहेवियर साइंस है जो आपके बेल्ट होता है कि जो आपके मुख्तलिफ डिसिप्लिन से आ जाता है। बेल्ट होता है कहाँ पर, और कंट्रीब्यूशन कहाँ से होती है, आपके फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन से आ जाता है, मतलब नंबर ऑफ बिहेवियर डिसिप्लिन से आ जाता है। मतलब आपका सोशियोलॉजी से भी आ सकता है, आपका जो है साइकोलॉजी से भी आ सकता है, या आपका जो है मैनेजमेंट की तरफ से भी आ सकता है। तो ये सारे क्या है, कुछ डिसिप्लिन है जो मूवी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, आपकी सोशियोलॉजी, आपका सोशल वर्क, जो भी है, ये जितने भी डिसिप्लिन हैं बिहेवियर डिसिप्लिन, तो ये मूवी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए जो है ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द नंबर ऑफ डिसिप्लिन देता है, और जो चीज़ें वहाँ पर वो है तो ये यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये देख आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ फील्ड्स हैं जो मूवी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। एक होता है सोशल साइकोलॉजी, आप बिहेवियर चेंज की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, whereas साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड। अब साइकोलॉजी में आप क्या करते हैं कि बंदे की लर्निंग, लर्निंग के क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ है आपको उसको देखते हो किया है, किस तरह आपने जो है अडॉप्ट करना है, उसको सीखना है, तो वो लर्निंग में आ जाता है। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन जो मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो इट इज द रीजन ऑफ एन एक्शन दैट गिव पर्पस एंड डायरेक्शन टू द बिहेवियर। पर्सनालिटी जो है वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि हर बंदे के अपनी पर्सनालिटी होती है, और एक अपना जो है कोई तरीका होता है, किसी तरह वो मिलता जुलना, मिलना जुलना, और जो है उसका तरीका, और फिर उसका जो है एटीट्यूड, इमोशंस जो है वो डिफर करते हैं एक बंदे से। ठीक है। तो साइकोलॉजी में इमोशंस, परसेप्शन, फीलिंग्स, लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अच्छा, लीडरशिप का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल्स माइंड। अगर आप देख सकते हो तो अगर आप लीडर को उठा देते हो, या किसी लीडर को उठा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेल्सन मंडेला की अगर मिसाल देते हो आपको, तो उसने अगर आप चेंज लाया है लोगों के जहन में, तो वो भी एक रिजीम के थ्रू आया है, मतलब एक पॉलिटिकल रिजीम था, उसी के थ्रू जो है आया। और उसका जो है लीडरशिप इफेक्टिवनेस आप उसके एक चेंज की वजह से भी आप देख सकते हैं कि उसने वो चेंज जो है अडॉप्ट किया, और किस तरह वो जो है अपने जो है अपने मंसूबों में जो है कामयाब हुआ। ये क्या है कि कुछ लीडर जो होते हैं वो उसकी इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कुछ लीडर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लर्न करते हैं। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ। तो ये भी साइकोलॉजी में जो है एक इंडिविजुअल जो है बेस पे जो है जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल को उठाते हैं कि यार वो अपने काम से मुतमईन है, या अपने जॉब जो भी है उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। फिर उसमें जो है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की तरफ हम जाते हैं कि यार एक बंदा है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कैसे है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को उठाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि किसी बंदे को जो है सालाना एक रिकॉर्ड कि यार उसने एक साल में कितना जो है ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया, और कैसे जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा एम्प्लॉय रहा। तो वो सालाना जो है हम सालाना जो है हम वो देखते हैं इस बंदे का। ठीक है। रिकॉर्ड कि उसने कैसे परफॉर्म किया। ठीक है। फिर आते हैं एटीट्यूड रिक्वायरमेंट की तरफ। एटीट्यूड मेजरमेंट। एटीट्यूड मेजरमेंट मतलब आप बंदे का रवैया भी देखते हैं कि हर साल का, एक साल में उसका रवैया कैसे रहा।
और कैसे उसने जो है अपने काम किस तरीके से किए, ठीक है। फिर एम्प्लॉय सिलेक्शन भी अगर आप देख दें तो इंडिविजुअल बेस पर इस तरह नहीं होता क्या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को ले, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को आप नहीं लेते, आप हम जो है उसमें जो है एक एक बंदे को हायर करते हैं, एक एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्क डिज़ाइन जो है वो भी आप एक बंदे के लिए बना लेते हो, क्या उसके लिए कौन सा जगह चाहिए, कौन सी जो है स्पेस चाहिए, तो वो एक बंदे के लिए आप करते हो। इसी तरह वर्क स्ट्रेस जो है वो एक बंदे का प्रेशर फॉर एग्जाम्पल जो एक बंदे पे आता है, तो ये आपको कुछ चीज़ें जो है कंट्रीब्यूशन जो है साइकोलॉजी की तरफ जो है ये भी ओबी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल बेस पे जो है ये सारी चीज़ें जो है ओबी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी, अगर आप एक बंदे के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह जॉब सेटिस्फैक्शन एक बंदे की कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो इसमें जो है बंदे की इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, तो उसमें जो है एक बंदे का परफॉर्मेंस पे उठा लेते हो या सॉरी ये नहीं है एटीट्यूड चेंज, और फिर उसके बाद बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये सोशल साइकोलॉजी में आते हैं। कि यहाँ पर आप जो है बंदे के बिहेवियर चेंज को देखते हो, एटीट्यूड चेंज को देखते हो, और उसमें जो है आप कम्युनिकेशन देखते हो, क्या इस बंदे की कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप प्रोसेस में वो किस तरह वो काम करता है, और जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है। तो इस सोशल साइकोलॉजी में आप एज अ ग्रुप लोगों को ले रहे हो, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर ग्रुप बिहेवियर में आप क्या करते हो कि एज अ ग्रुप लोगों को ले लेते हो, और उससे जो है आप स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में आप मुख्तलिफ कम्युनिटी को देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हो, उसके लिए आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को उठाते हो, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को उठाते हो, ऑर्गेनाइजेशन चेंज को, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शायद आप लोग साथ नहीं किया था। कल्चर जो है इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ टेक्निक्स जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इसी तरह जो है एंथ्रोपोलॉजी, वो भी आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उसमें देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पावर को देखते हो, और वो जो है किस तरह ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है, फिर वो जो है कैसे ओबी को कंट्रीब्यूट करता है। It totally depends on organization system, and the organization systems depends on the contribution of anthropology. इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, comparative values, comparative attitudes, cross cultural analysis, organization culture, organization environment, power। अब एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, और इसी तरह सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। Psychology is the science that seeks to measure, explain, and sometimes change the behavior of human and other animals. Psychology असल में मैंने पहले भी बोला किया कि ये इट्स स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, कैसे आप मेजर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बंदे की जो है चेंज बिहेवियर, इंसानों के, हैवानों की भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी तरह उस बंदे को जो है स्टडी कर लेते हो, उसका बिहेवियर, उसका माइंड स्टडी कर लेते हो, ताकि वो कैसे डील करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह पर किसी सिचुएशन में। सोशल साइकोलॉजी में आप क्या करते हो, सोशल साइकोलॉजी ब्लेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, उसमें आप ग्रुप टेक्निक्स को भी उठा लेते हो, इंडिविजुअल को भी उठा लेते हो, मतलब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का कम्बिनेशन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटीज, कि कैसे सोसाइटी जो है इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जो है अपना एक तरीके बनाते हैं, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी ब्लेंड्स द कांसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि साइकोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एंड व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजी वहाँ पर मैंने वैसे डिस्कस किया, अब यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन भी देखते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं। Sociologists study the social system in which individuals play their roles
that is sociology studies people in relation to their fellow human beings, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं सोशल सिस्टम में, मतलब जो लोग वहाँ पर रहते हैं सोशल सिस्टम, एंड विजुअल फिर देयर वाज आल्सो विजुअल के गोल होते हैं, मतलब वो उसकी सोशल स्टडीज होती हैं, वो के रिलेशन को देखने और लोगों के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो वो भी आप सोशोलॉजी में देखते हो। एक सोशोलॉजी में आप कम्युनिटीज को उठाते हो, सोसाइटी को उठाते हो, उसके अंदर कल्चर भी देखते हो, उसके जो है आप रस्म रिवाज भी देखते हो कि उसमें वो रस्म रिवाज क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, उसका रिलीजन क्या है, तो ये किस्म का जो है आप उसमें कल्चर भी देखते हो, कौन कौन से इलाके में कौन कौन से लोग हैं, कौन रहते हैं, इसी तरह जो है आप सोशोलॉजी में देखते हैं। और इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी भी आप जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, उसमें आप लोगों की एक्टिविटीज को देखते हैं। इस तरह कल्चर को मैंने वहाँ पर बताया थी सोशोलॉजी में, लेकिन उसमें जो है आप लोगों के रिलेशन और वो चीज़ें थी, यहाँ पर आप उसकी एक्टिविटीज को देखना है, वो काम काज जो चीज़ें करते हैं अपने कल्चर के अंदर वो एलिमेंट से उसको आप बताते हैं। और इसमें आप क्या क्या देखते हो, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटीज to learn about human beings and their activities. उसमें तो हमने ये फीलिंग की बात की और रिलेशन की बात की, तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या था, क्या है कि आप उसमें जो है सोसाइटीज के बारे में देखते हो और कैसे जो है उसकी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में आप जो है देखते हो, फिर ये जो है कैसे कंट्रीब्यूट करता है हॉबी में, तो ये जो है खामखा उसकी एक्टिविटीज जब आप बता लेते हो तो खामखा वो आपको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब साइकोलॉजी क्या है, ये तो मैंने डिस्कस किया सॉरी। अच्छा, अब आते हैं देर आर फ्यू एनी सिंपल एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट अप्लाई होते हैं। कंटिंजेंसी वेरिएबल, कंटिंजेंसी वेरिएबल का मतलब क्या है कि सिचुएशन के मुताबिक, अब एक ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जिसमें जो है आप एक बंदे को मॉडरेट रिलेशन में मालूम करते हैं, और वो कैसे मालूम होता है यार, अगर आप देखें तो कुछ जगहों पे आप एक कह सकते हैं कि एक बंदे पे डिपेंडेंट हो, आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो। यहाँ पर अगर आपने ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र किया गया है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें आपको असर मिल रहा है किसी वजह से, मतलब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको वजह मिल रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वो आपका असर जो मुख्तलिफ जगहों से आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है थ्रू एम्प्लॉयज और थ्रू कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो लोग हैं और जो कोऑर्डिनेशन लोगों का है, अगर वो अच्छा रहेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास इख्तियार है कि अच्छा काम करे बुरा काम करे या ना, तो वो क्या है इंडिपेंडेंट है। तो वो अगर काम अच्छा करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल को बूस्ट मिलेगा, मतलब आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को अच्छा काम मिलेगा, आप जो है वो अच्छा कर सकेंगे। अगर अगर वो नहीं कर सकते उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोग सही तरीके से काम नहीं करते, ठीक है। और वो फिर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट नेगेटिव करेगा ना, अच्छा नहीं मिलेगा। अब आते हैं, अब कैसे वो जो है कंट्रीब्यूट करता है, ओबी को कैसे अप्लाई होता है, सिचुएशन फैक्टर दैट मेक द मैन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल चेंज, द रिलेशनशिप में होल्ड फॉर वन कंडीशन बट नॉट। अगर आप देख लें
कंटिजेंसी वेरिएबल फॉर एग्जांपल इन अमेरिकन कल्चर, ये हमारा एक कंटिजेंसी वेरिएबल है, उसमें बॉस गिव थम्स अप साइन और अंडरस्टूड एज कम्प्लीमेंटिंग, बिल्कुल कम्प्लीमेंट दिया। ठीक है, अगर ईरान में देख लें, ईरान में वही कल्चर, ईरान में वही कल्चर अगर आप देख लें तो वो अगर बॉस जो है वो थम्स उठाता है तो वो उसको क्या समझता है कि यार ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है ईरान से ताल्लुक रखता है, उसके लिए बॉस जो है वो थम्स अप करता है, मतलब इस तरह करता है कि यार वेरी गुड। लेकिन वहाँ पर क्या है, अमेरिकन कल्चर में वो वेरी गुड है क्योंकि उसको एक कम्प्लीमेंट होता है। वेयर एज जो आप ईरानियन कल्चर में आप थम्स अप कर लें उससे क्या मतलब है कि यार वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करते हैं हमारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज और वो भी कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है इकोनॉमिक प्रेशर में? ठीक है ना, अगर आप देख लें तो इकोनॉमिक टफ टाइम है, मतलब एक बंदे के ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पर या किसी सोसाइटी में टफ टाइम होता है और इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है क्या करता है, वो उसके लिए एक एसेट होता है। एसेट क्या होता है? आप लोगों ने फाइनेंशियल टर्म्स में ये आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एसेट जो है हमारी माली पूंजी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें तो आपके एसेट। इसी तरह मैनेजमेंट के से मुराद ये है कि आपके एम्प्लॉयज, आपके जो जितने चीज़ें हैं आपके एम्प्लॉयज के साथ एसोसिएटेड हैं तो वो भी आपके एसेट में आते हैं। ठीक है, अब इन गुड टाइम्स अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिवॉर्ड सेटिस्फाई रिटेन एम्प्लॉयज इज एट प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जब ओबी को कंट्रीब्यूट करना है, आपने जब आपने ओबी कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपने ये भी जहन में रखना है कि कभी सही टाइम भी आएगा, कभी गलत टाइम भी आएगा। गलत से मुराद ये है कि आपका बुरा टाइम। ठीक है, तो आपने कैसे अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना है, कैसे जो है उसको सेटिस्फाई करना है, कैसे अपने एम्प्लॉय को अपने पास रखना है और कैसे उसको अपने साथ ये एसोसिएट करना है कि आप मेरे एसेट हो, आप कैसे जो है हमारे लिए काम करेंगे। और बैड टाइम में क्या होगा कि स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग और कोपिंग टू, ठीक है ना, कोपिंग कम हो, मतलब आप क्या करें कि उसमें आप स्ट्रेस में भी आप इसी तरह करेंगे कि किसी को अपने साथ रखें, कोपिंग करेंगे कि यार आपने उसको इस तरह नहीं करना, बाहर नहीं करना। ठीक है ना, तो ये था कुछ ओबी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पढ़ने हैं आगे। ठीक है, अब उसमें जो है द नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन से मुराद क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं फिर बाहर दुनिया को देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन से मुराद ये है कि जितने भी आपके बाहर ममालिक थे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे जो है आप इंटरनेशनलाइजेशन को देखते हैं, कैसे जो है इंटरनेशनलाइजेशन पे आपका फोकस रहेगा। अब इंक्रीज फॉरेन असाइनमेंट से क्या मुराद है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज है उसको चैनलाइज करो या उसको जो है आप फॉरेन के साथ एसोसिएट करो। इंक्रीज फॉरेन असाइनमेंट्स का मतलब है कि आप वहाँ पर भी ऑपरेशन स्टार्ट करो, वहाँ पर भी कंपनी खोल दो। फॉर एग्जांपल आपकी जो है पाकिस्तान में एक कंपनी, तो आप कोशिश करते हो कि आप बाहर जो है दुबई में भी कंपनी बना लो, आप कोशिश करते हो कि अफगानिस्तान में भी कंपनी बना लो, या आप कोशिश करते हो कि आप दुनिया की और जहाँ पर मेरी कंपनी के जो एक्सेस हैं किसी तरह वो भी वहाँ पर मैं पहुँचा सकूँ। तो आप जो है फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन असाइनमेंट्स बढ़ाओ, मतलब आप वहाँ पर भी कंपनी को। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। अब आपने किसी तरह जो है मुख्तलिफ लोगों को हायर करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। इसको हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। अब इसका जो है वो भी कॉन्सेप्ट में क्या मतलब है कि आप मुख्तलिफ लोगों को ले लो एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज दे दो, मतलब आप बरतानिया से भी लोगों को ले लो, सऊदी अरेबिया से भी ले लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, मुख्तलिफ जगहों से आप लोगों को ले लो और उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज असाइन करें। ये क्या है?
डाइवर्सिटी या वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। अब इसके बाद आती है मैनेजिंग वर्क टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। अब आपकी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं किस तरह उसको आपने मैनेज करना है, ठीक है। अब उसमें आपके वुमेन भी होंगी, मैन भी होंगे। अब उसमें रैशनल इतने ग्रुप्स से क्या मुराद है, कोई ब्लैक, कोई वाइट होगा, कोई जो है इतने ग्रुप से, मतलब आपका माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो सकता है, आपका जो है ज्यूज हो सकता है, आपका जो है फॉर एग्जांपल आपके और भी सिख कम्युनिटी से भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो ये आपके कुछ इतने ग्रुप्स में भी आप बता सकते हो कि आप किस तरह उसको मैनेज कर सको अपने डाइवर्सिटी को, ठीक है। और इसी तरह आपने इंडिविजुअल कि with a variety of physical और psychological abilities को भी देखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, और people who differed in age and sexual orientation का आपने जिस तरह उसको भी मैनेज करना है। मतलब आप एक फीमेल है, मेल है, उसका एज एक का 35 साल है, एक का 25 साल है, एक का 20 साल है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में डालो कि यार उस वहाँ पर 20-25 साल के लोग होते हैं, इस तरह ना हो कि यार 20 साल को आप 50 साल वाले। तो ये आपने किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी है उसको मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा बंदा है अटेंडेंस के लिए, केसर अब्बास बीबीए सेकंड। अच्छा केसर अब्बास, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम एक ब्रेक ले नो लेते सर, हैं। क्लियर क्लियर। नो सर, क्लियर क्लियर। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है।